Good morning, dear students. Today we will start a new chapter of history, that is traders, kings, and pilgrims. Let us begin. So, what we will learn in this lesson we'll learn about Sangam text and long distance exchange, how the trade used to happen at that time, and we'll study about some kingdoms which were along the peninsular region of India. Then conquerors from distant lands, northwestern and western India, the spread of Buddhism, how the religion of Buddhism spread from North India to Central Asia. So let us begin with trade and traders. So who are traders? Traders are the persons those who bought things from one place to another and then they sold them at other places. So traders वो पर्सन होते हैं जो किसी भी कमोडिटी को एक जगह से या एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और उनको सेल करते हैं. देन साउथ इंडिया वॉज फेमस फ्रॉम इंडिया टू यूरोप फॉर गोल्ड, precious stones, spices, especially pepper. Pepper was the most valuable commodity that was even known with the name of black gold in the Roman Empire. So इंडिया की बहुत सारी ऐसी commodities थी जो यूरोप में बहुत फेमस थी, जैसे कि गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स, स्पाइसेस मसाले और पेपर. ब्लैक पेपर बहुत फेमस था इंडिया का, काली मिर्च रोमन एम्पायर में, और ओफन ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड प्रेफर किया जाता था. Traders sent these products from India to Rome either by ships or caravans, and trade was very prosperous. So जो merchants होते थे या sellers होते थे, traders होते थे, वो products इंडिया से send करते थे, बेचते थे रोम में, या तो वो ships का यूज़ करते थे या फिर caravans. Means there were two modes, either by the waterways or either by using the land routes. So land routes पे caravans ज़्यादातर जाते थे. Caravans are usually ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु ट्रेवल विद द एनिमल्स, लाइक कैमल्स का एक ग्रुप हो गया और उसके साथ में जो भी ट्रेडर्स थे वो जब एक साथ ग्रुप में जाते तो उसको कैरावन्स बोल देते हैं. एंड द ट्रेड वॉज वेरी प्रॉस्पेरस. मैनी रोमन गोल्ड कोइंस आर फाउंड इन इंडिया, और आज भी बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे इंडिया में रोमन कॉइन्स डिस्कवर किए जाते हैं. तो व्हाट इट मीन्स, ये अगर आप रोमन कॉइन्स देख पा रहे हैं पूरे इंडिया में अलग अलग साइट्स पे, तो उसका मतलब यही है कि करेंसी बिना किसी टाइप के बिजनेस के तो नहीं आ सकती. नो कंट्री विल गिव करेंसी टू अनदर कंट्री विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रेड. सो इससे ये प्रूव होता है कि हाँ, इंडिया और रोम के बीच में उस टाइम पर बिजनेस टर्म्स थे, ट्रेडिंग टर्म्स थे. And especially these coins are discovered at the ancient ports of India. So traders traveling to and from India sailed along the coast of the countries, but in monsoons they used to follow the monsoon winds to travel faster. So traders travel करते थे इंडिया में आने के लिए और इंडिया से जाने के लिए by using the coast of the countries. Coast is the land area which is near the sea or ocean. So monsoon में basically at that time also people were having the knowledge of monsoon winds. So some of the people used to follow these monsoon winds when they needed to travel faster. तो जब भी उन्हें किसी जगह जल्दी पहुंचना होता तो मानसून विंड्स का भी यूज़ करते, डायरेक्टली क्रॉसिंग द अरेबियन सी और द बे ऑफ बंगाल. Kingdoms along the coast. In South India and Southern India, the areas around the Kaveri River are the most fertile, and the kings and the chiefs who control those fertile valleys and coast became very rich and powerful. See, at that time when the civilization started, or we can say about the ancient time, most of the kingdoms which were prosperous were established along the rivers or river valleys. सो जहाँ भी पानी का सोर्स होता था उसी के पास सिविलाइजेशन ज़्यादा देखी जाती थी. और जितने भी किंगडम्स ऐसे होते थे जो रिवर्स के पास होते थे या फिर रिवर वैलीज के पास होते थे, उन्हें देखा जाता था दे यूज्ड टू बी रिच एंड प्रॉस्पेरस, ग्रो करते थे. सो कावेरी रिवर जो एरिया था कावेरी रिवर के आसपास का बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, फर्टाइल था, और जो किंग्स थे या फिर चीफ्स थे जो इस एरिया को कंट्रोल करते थे तो बहुत रिच, बहुत अमीर हुए और बहुत पावरफुल हुए. Then Sangam poems mention the Movendar. Sangam basically was like an assembly of the Tamil poets, and it is said that these assembly were conducted 3 times. तो ये संगम 3 बार कराया गया. सो कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तमिल
नाट की जितनी भी हिस्ट्री के बारे में जो स्ट्रक्चर मिला बेसिकली वो इसी टेक्स्ट से मिला है जो संगम पोएम्स में हमें मिले हैं. So Sangam poems mention the Movendar. Movendar basically is a term used for the three chiefs who were having very powerful kingdoms to the south of India. So these three kingdoms were the Cholas, Cheras and the Pandyas. Each kingdom had two centers. Her kingdom के अपने two important centers थे. One was inland and another one was coastal. For example, the coastal center of the Chola was Puhar. So Cholas का जो coastal center था that was Puhar और Kaveri Patnam, and that of the Pandyas was Madurai और Pandyas का Madurai था. So these two out of the 6 important cities were the most important. They did not take regular taxes but demanded gifts from their people. So ये जो chiefs होते थे ये कोई regular tax charge नहीं करते थे लोगों से, लेकिन गिफ्ट्स उन्हें मिला करते थे यार. दे यूज टू डिमांड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल एंड दे ऑल्सो फ्रिक्वेंटली वेंट ऑन द मिलिट्री एक्सपीडिशंस. बहुत एक्सपीडिशंस भी करते थे, वॉर्स बैटल्स पे जाते थे टू कलेक्ट ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज एंड किंगडम्स. जो भी उनके आसपास के जो पड़ोसी राज्य होते थे वहाँ से ट्रिब्यूट करते. ट्रिब्यूट वॉज समथिंग विच वॉज वॉलंटरीली गिवन टू बाय द पीपल टू सम पर्सन. जब कोई अपनी मर्जी से किसी को कुछ डोनेट कर रहा है या राजा को डोनेट करते थे पुराने टाइम में लोग, तो उसको ट्रिब्यूट कहा जाता था. दे केप्ट सम वेल्थ फॉर देमसेल्व्स. तो कुछ तो उसका हिस्सा वो अपने पास रखते थे जो चीफ्स होते थे, राजा होते थे, और काफ़ी हिस्सा उसका डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जाता था राजाओं के द्वारा या इन हेड्स के द्वारा उनके सपोर्टर्स में, फैमिली में, या फिर जो सैनिक होते थे सोल्जर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. दे ऑल्सो शार्ड पोइंट्स विद गोल्ड जेम्स. सो all these poets who used to assemble together in the courts of these kings. So इन तीनों heads के या हम कह सकते हैं राजाओं के कोर्ट में या दरबार में जो भी पोइट होते थे वो यूजुअली इनकी तारीफ़ों में पोएम्स लिखते थे, कविताएं लिखते थे. तो उससे खुश होके जो चीफ होते थे या राजा होते थे वो पोइट्स को बहुत सारे गिफ्ट देते थे इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड्स देना, जैसे गोल्ड देना, सोने के कुछ भी जो भी वापस करते होंगे उस टाइम पे, शीलिंग्स और समथिंग लाइक दैट. देन जेम्स, चैरियट्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, मीन्स ऑल दे यूज्ड टू बी रिवॉर्डेड फॉर देयर पोएट्रीज. Then around 200 years ago, after the Movendar, the Satavahanas came into power. So 200 साल बाद इन तीनों चीफ के बाद सतवाहनास पावर में आते हैं सदर्न रीजन में इंडिया के. एंड देयर ग्रेटर रूलर वॉज गौतमीपुत्र सतकर्णी. सो इस डेनेस्टी, सतवाहना डेनेस्टी के सबसे जो प्रोमिनेंट राजा माने गए हैं वो गौतमीपुत्र सतकर्णी माने गए. एंड वी नो अबाउट हिम थ्रू दी इंस्क्रिप्शंस. और हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली कुछ इंस्क्रिप्शंस के द्वारा जो कि स्टोन्स में लिखा जाता है. आई होप एवरीबडी नोज व्हाट इज एन इंस्क्रिप्शन. एंड मेड बाय दी मदर गौतमी बाला. सो ये जो इंस्क्रिप्शन है जिसमें हमें सतकर्णी जी के बारे में पता लगता है, दैट वॉज रिटन बाय हिज मदर ओनली. दैट हर नेम वॉज गौतमी बाला. He and the other Satvana rulers were known as lords of Dakshinapatha. So सतकर्णी और उन जितने भी दूसरे सतवाना रूलर्स हुए हैं उनको लॉर्ड्स माना गया, यानी कंट्रोलर माना गया दक्षिण पथ का, द सदर्न स्ट्रिप, विच लेटर केम टू इंक्लूड ऑल दी साउथ इंडिया, जिसमें फिर बाद में पूरा साउथ इंडिया का जो रीजन है वो पूरा इंक्लूड किया गया उसी में. द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ये पूरा जो प्रोसेस था सिल्क को बनाने का बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. रो सिल्क, कच्ची सिल्क को कोकून से सिल्क वॉर्म की कलेक्ट किया जाता, फिर उसको धागे में स्पन किया जाता, देन इट वॉज वोवन इनटू क्लॉथ. सो चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री हु वॉज अवेयर अबाउट दिस टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क. सो चाइना वो पहला देश था जिसको इसके बारे में पता था. एंड चाइना ने काफ़ी कोशिश की बहुत सालों तक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक उसका जो प्रोसेस था सिल्क को बनाने का जो प्रोसेस था उसको सीक्रेट रखा गया. एंड पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड ऑन फूड, हॉर्सबैक एंड ऑन कैमल्स कैरिड सिल्क विद देम. सो जो भी लोग कुछ लोग जो चाइना से ट्रैवल करते थे या चाइना के ही होते थे और वो किसी और एरिया में जाते वाई वट एवर वे, तो दे यूज टू कैरी दैट सिल्क विद देम, दैट फैब्रिक विद देम. So the path they followed came to known as the Silk Route. So जिन भी रस्तों से वो सिल्क को लेकर गए उन्हीं रस्तों का नाम सिल्क रूट पड़ता गया. एंड सिल्क रूट वॉज नॉट ओनली द लैंड रूट, इट वॉज सी रूट एज वेल. रास्ता
ज़मीन से और समुद्र से, दोनों जगह से होकर जाता था. Then Chinese rulers sometimes sent gift of silk to rulers in the Iran and West Asia, due to which their knowledge of silk spread further west. So जो चाइना के रूलर्स होते थे वो गिफ्ट के तौर पर सिल्क को सेंड करते थे रूलर्स के लिए, ईरान की और या फिर वेस्ट एशिया की, because of which the information about the silk is spread in the west as well. So among the rulers and rich people in Rome, wearing silk became the fashion about 2000 years ago. So 2000 साल पहले ये एक फैशन बन गया रूलर्स के बीच में. और जो भी रिच लोग होते थे रोम में, दे द सिल्क बिकेम बेसिकली अ status symbol in Rome around 2000 years ago. So at that period silk was very expensive. So उस टाइम सिल्क बहुत महंगा होता था, as it had to brought all the way from the China by road through the mountains and desert, because of the problems which a person has to face while taking silk. So at that time there used to be the two ways were only there: either you can move from land, either you can move from sea or ocean. So that's why the cost of the silk was very high at that time. So some kings tried to control large portion of the route because they could benefit from taxes, tributes and gifts that they were brought by the traders traveling along the route. So बहुत से राजाओं ने कोशिश की है कि सिल्क रूट को कंट्रोल किया जाए, जो भी उनके एरिया में पड़ता था, जो भी उसका पोर्शन. एंड वाई डिड सो, बिकॉज जितने भी वहाँ से ट्रेवलर्स आते थे उनसे टैक्सेस चार्ज करना, ट्रिब्यूट्स लेना, गिफ्ट्स लेना, बिकॉज ऑफ दीज रीजन दे यूज टू tried to control the routes. In return, they protected the traders who passed through their kingdom from attacks by robbers. So जितने भी kings होते थे जो उस पर्टिकुलर एरिया को सिल्क रूट की कंट्रोल करते थे, उनको गिफ्ट्स मिलते, टैक्सेस मिलते, साथ में उसके रिटर्न में वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे ट्रेडर्स को या जो भी ट्रेवलर होता था उस एरिया. द सिल्क रूट वॉज कंट्रोल्ड बाय कुशानाज. सो सिल्क रूट को बहुत कंट्रोल किया है कुशानाज ने, हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स अगो. जिन्होंने रूल किया है सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 2000 साल पहले करीब. Their two major centers of parts were Peshawar and Mathura. So कुशानाज के दो important जो stations थे या centers थे, they were Peshawar and Mathura. Takshila was also included in their kingdom during their rule. A branch of silk route extended from Central Asia down to the seaports of the mouth of river Indus. So कुशानाज के रूल के टाइम पे जो सिल्क रूट का एक और ब्रांच एक्सटेंड हुआ सेंट्रल एशिया से लेकर टू द माउथ ऑफ द रिवर इंडस, फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिफ्ट वेस्टवर्ड्स टू द रोमन एम्पायर. सो वहाँ से सिल्क को वो शिप करते थे. अब सिल्क यूज टू बी एक्सपोर्टेड वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर में जाता था. देन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म.